Confidence is not something you're born with, it's something that you build. I mean, if you guys met me a few years back, you wouldn't even believe that I am the same person. Because the girl who was even scared of talking in her class while she was in school is now working with brands and talking in front of the camera. Hi, if you're new here, my name is Anushka, and this channel is basically a place where I yap about life, about self love, self growth, and all the things that I'm learning while figuring out life. Honestly, I love learning new things and sharing my experiences and thoughts along the way. I also love creating dance, fashion, beauty, and lifestyle content. I work out a lot, I dance a lot, and I'm also a co founder of a clothing brand called Zenarate. So, this channel is just a little mix of everything that I love and that seems real to me. Also, guys, I am a little sick. I have a sore throat and my nose is blocked. So, we can ignore how weird I am sounding today. And this video is also part of my series called Building While Becoming, in which I talk about, more things related to self love and self growth. So, if you want to watch more videos like this, you should definitely check out that playlist. So, today I want to talk about confidence, not in a motivational speaker kind of way, but through my own story and through my own experience. Because trust me, I know how it feels to be underconfident. I know how it feels to, be socially anxious, or if you have that fear of speaking. I know all of it. सबसे पहले let's come to my school phase. स्कूल में मैं कैसी थी? सो स्कूल में जब प्रेजेंटेशंस होती थी, कुछ भी होता था, व्हेन यू हैड टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द क्लास, I would get really really nervous. Trust me, all of my friends from school know it. And it was extreme nervous, not some छोटा सा amount. It was extreme. Like my throat would close up, I would cough again and again. I had to even go to the washroom because of anxiety. बट वंस आई स्टार्टेड प्रेजेंटिंग इट, एवरीथिंग वाज फाइन. तो मुझे पहले डर लगता था बोलने से पहले, बट व्हेन आई स्टार्टेड स्पीकिंग एवरीथिंग वाज फाइन. देन आई कुडंट इवन टॉक कॉन्फिडेंटली. ठीक है, मैं अपने दोस्तों से बात कर लेती थी, सही था. बट टॉकिंग टू एनी न्यू पर्सन या किसी सीनियर से बात करना, अप्रोच करना, इनफैक्ट मैं टीचर से डाउट भी नहीं पूछती थी, बिकॉज आई वॉज सो अंडर कॉन्फिडेंट एंड स्केयर्ड. और जो मैंने ये बात बोली कि मैं प्रेजेंटेशन या कुछ भी बोलने से पहले डरती थी, बट वंस आई स्टार्टेड स्पीकिंग एवरीथिंग वाज फाइन. जब मैं उस हेड स्पेस में घुस जाती थी, तब सब सही होता था. दिस ऑल्सो हैपन डांस में. स्कूल में शुरू से मेरी मॉम ने मुझे हर डांस की चीज़ हो, कुछ भी हो, हर किसी में पार्टिसिपेट करा. एंड शुरू से आई लव डांसिंग बचपन से. सो आई यूज टू पार्टिसिपेट एनुअल डेज में और कोई भी इवेंट होता था तो. बट जब हम स्टेज के पीछे होते थे, मुझे इतनी एंजाइटी होती थी, इतनी नर्वसनेस होती थी कि मुझे लगता था कि आई वुड नॉट बी एबल टू डू इट, आई विल नॉट डू इट, एंड मुझे पैनिक अटैक आ जाएगा. बट वंस आई रीच द स्टेज, आई यूज टू किल इट. तो इस चीज से मुझे ये रियलाइज हुआ दैट समटाइम्स एंटिसिपेशन इज मोर स्केरियर दैन द एक्चुअल थिंग. आई रिमेम्बर एक टीचर थी मेरी, आई वॉज वन ऑफ हर फेवरेट स्टूडेंट्स. तो क्या हुआ, दशहरा सेलिब्रेशन था हमारे स्कूल में, एंड वॉट वी हैड टू डू इज, तब मैं आई थिंक एट्थ नाइन्थ में थी, या आई गेस सेवेंथ एट्थ में थी. तो जो हम लोग थे, हमें अपने जूनियर्स की क्लास में जाके वी हैड टू मेक अ प्रेजेंटेशन ऑन दशहरा, एंड वी हैड टू प्रेजेंट इट विद विदाउट लुकिंग एट द प्रेजेंटेशन. तो तुम्हें याद करके वी हैड टू प्रेजेंट इट. तो अब क्या होता है, मैम ने मुझे बोल दिया, अब मेरी बज गई बैंड कि मैं कैसे प्रेजेंट करूँगी. एक क्लास नहीं थी, हमें हर क्लास के हर सेक्शन में, सेकंड के सेक्शंस में, थर्ड के सेक्शन में, फोर्थ के सेक्शन में जाके आई हैड टू प्रेजेंट, पूरी स्टोरी बताना कि दशहरा क्यों होता है, क्या होता है, एंड पूरा सब. And I was genuinely so scared of speaking in front of so many people. But I think my teacher saw potential in me before I even saw it myself. She always wanted me to be more confident. मैं इतनी अंडर कॉन्फिडेंट थी ड्यूरिंग माई स्कूल डेज, अर्ली स्कूल डेज, कि अगर मैं अपनी फैमिली के साथ भी बाहर जा रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल डैड, मॉम एंड मेरी बहन, हम चारों बाहर जा रहे हैं, और अगर मेरे मॉम डैड मुझे बोले कि यू डू द ऑर्डर थिंग, प्लेस एन ऑर्डर, तो अब मैं बोल ही नहीं पाती थी. मैं बोलती नहीं, मैं नहीं बोलूंगी, मैं ऑर्डर नहीं दे सकती, आप दो. एंड आई यूज्ड टू से दैट टू पापा मम्मा कि आप दो, आप दो, मैं नहीं दे सकती ऑर्डर. तो तब मैं ऑर्डर भी नहीं देती थी. बट नाउ व्हेन आई लुक बैक, और मुझे ये चीज़ें रियलाइज होती है कि हाउ माई टीचर पुश्ड मी, या फिर जो प्रेजेंटेशंस थी, हाउ माई डैड यूज टू पुश मी कि जाके बात करो, ऑर्डर दो. उस चीज़ से मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आती थी, एंड दैट हेल्प मी बिल्ड कॉन्फिडेंस धीरे धीरे. देन आता है मेरा कॉलेज का फेज. अब कॉलेज में पहले इनिशियली I thought, sorry. So initially, I thought
that I'll go to UK to study, and I applied and I got accepted also. बट आई थिंक मैं खुद भी उस समय रेडी नहीं थी, एंड मेरे डैड ने बोला कि इफ़ यू वांट टू डू मास्टर्स तब बाहर चले जाना, अभी लाइक इफ़ यू स्टे हियर इट्स बेटर, एंड इट वाज अ म्यूचुअल डिसीजन। और मुझे लगता था मैं उस समय खुद भी रेडी नहीं थी, क्योंकि मैं खुद इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी कि मैं बाहर जाके रहूँ। सो देन व्हेन आई स्टार्टेड फाइंडिंग कॉलेजेस, तब मैंने एमिटी देखा, एंड एमिटी में देयर इज दिस स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम। तो मैंने पापा को पहले बोल दिया कि ठीक है, वो 1 महीने का प्रोग्राम है, एंड आई विल गो टू लंदन। मुझे जाना है बिकॉज आई वांट एक्सपोजर, कि भाई अकेले कैसे रहते हैं, ट्रैवल करना, ये सब। सो मेरा मेन मोटिव एमिटी जाने का ये था कि एमिटी में जो एक्सपोजर है, और या फिर बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जो एक्सपोजर है, वो कहीं नहीं है। द वे दे मेक यू डिसिप्लिन, जैसे वो तुमसे प्रेजेंटेशंस कराते हैं, जैसे तुम्हें हर चीज़ की रिपोर्ट बनानी है, बात करनी है, तुम वहाँ पे बहुत लोगों से मिलते हो, एंड वो एक्सपोजर तुम्हें कहीं और नहीं मिल सकता। दैट्स व्हाट आई थॉट। एंड सेकेंडली द स्टडी अब्रॉड वाला थिंग मैंने पहले ही देख लिया था एडमिशन से पहले, एंड मेरे को था कि मुझे तो यही जाना है। सो एमिटी में भी स्टार्टिंग में व्हाट हैपेंड वाज, प्रेजेंटेशन में वापस अभी भी मेरे को डर लगता है। ठीक है, अभी भी मेरे दोस्तों से पूछो कि मेरी बैंड बजती थी, मतलब मुझे खांसी आई जा रही है, मैं खांसी जा रही हूँ, खांसी जा रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है मुझे वॉशरूम जाना है, भाई मुझे एंजाइटी हो रही है। तो स्टार्टिंग में ये हुआ, बट मैंने सोचा भाई कब तक ये फियर लेके चलना पड़ेगा, आई हैव टू बी कॉन्फिडेंट। एंड तब आई थिंक आई डिडंट स्टार्ट मेकिंग कंटेंट। मैंने कंटेंट तो आई थिंक अपने सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में स्टार्ट करा था बनाना। तो वहाँ पे भी, कॉलेज में भी मैं प्रेजेंटेशंस बस अपनी फॉर द सेक ऑफ इट दे देती थी, कि देख के बोल दिया, जैसे तैसे करके दे दी। ठीक है, बट मुझे रियलाइज हुआ कॉलेज ऐसी जगह है जहाँ पे वी कैन लर्न, वी कैन ग्रो, वी कैन बिल्ड आवर कॉन्फिडेंस, बिकॉज यहाँ पे कॉलेज में जो भी लोग हैं, दे आर ऑल फिगरिंग देयर लाइव्स आउट। तो कोई तुम्हें जज नहीं करने वाला, ठीक है, सब फिगर आउट करने आए अपनी चीज़ें, सब कॉन्फिडेंट बनने आए हैं, सब ग्रो करने आए हैं, सब चीज़ें सीखने आए हैं। तो मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं भाई, अब तो मैं प्रेजेंटेशन ऐसे नहीं देने वाली। सो आई रिमेंबर एक टीचर की प्रेजेंटेशन थी, एंड वो थोड़ी स्ट्रिक्ट सी टीचर थी, तो मैंने बोला भाई मैं तो इम्प्रेस करूंगी इन्हें अब। एंड मेरे को जितना डर लगता था, मैंने बोला आई विल फेस माई फियर। सो वॉट आई डिड वॉज, जो मेरा पार्ट था मैंने पूरा याद करा, आई रोट इट डाउन एवरीथिंग, एंड उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन पूरा अच्छे से मैंने, आई थिंक बहुत बड़ा, काफ़ी बड़ा बनाया, एंड आई रिमेंबर्ड इट, पूरा मैंने याद करा। ठीक है, अब मैं क्लास में जाती हूँ प्रेजेंटेशन के लिए, कोई किसी ने मुझसे पहले ऐसी प्रेजेंटेशन नहीं दिया, मुझे डर लग रहा है मैं कैसे दूंगी। बट मैं अपना माइंड मेकअप करके आई थी कि आज तो मुझे देनी पड़ेगी, चाहे मेरे पे सब हंसे, चाहे मैं भूल जाऊँ, चाहे मुझे कुछ याद ही ना हो, बट स्टिल मैं ऐसे दूंगी, क्योंकि जब तक फियर ओवरकम नहीं करूंगी ना, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी इस चीज़ से। सो वॉट हैपन वॉज, मैंने जो याद करा, आई स्टार्टेड वॉकिंग इन द क्लास। मैंने स्टार्ट करा अपना पार्ट, और मैं क्लास में वॉक कर रही हूँ, जैसे टीचर्स पढ़ाते हैं ना, टीचर्स समझाते हैं, वैसे वॉक करने लग गई। सो व्हाट हैपेंड वाज, द स्टूडेंट्स दे स्टार्टेड लाफिंग। अब मेरे दोस्त हंसने लग गए कि भाई चल रही है, मैं विंडो तक पहुंच, मतलब मैं पूरी क्लास में चल रही थी, अब वो हंसने लग गए। अब उस समय मुझे लगा यार ये तो हंस रहे हैं वो, बट मैंने सोचा कोई नहीं भाई, हंसते रहो, आई विल इग्नोर यू गाइस, एंड मैं अपने प्रेजेंटेशन पे फोकस करूंगी। तो मैंने पूरी क्लास घूमते घूमते एक एक पॉइंट समझाते, एक बार भी मैंने लैपटॉप पे नहीं देखा, प्रेजेंटेशन उस पे नहीं देखा, मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया। एंड उस समय मेरी इतनी बैंड बज रही थी ना अंदर से, but still I did it. I promised myself that I would kill this presentation. And the teacher, she appreciated me a lot. और मेरे internals में full लगाए थे उन्होंने। I can show you my report card, अभी भी उन्होंने मेरे full लगाए थे। And she was so impressed, उन्होंने मेरी इतनी तारीफ करी, और उसके बाद मुझे ऐसा लगा वाओ भाई ये मैं कर सकती हूँ। एंड सबसे फनी बात, तब तक कोई ऐसे प्रेजेंटेशन नहीं देता, बट मेरे बाद सारे बच्चे प्रेजेंटेशन ऐसे देने लग गए, जो थोड़े ऐसे टॉपर बच्चे थे, वो सब यही करने लग गए। दे यूज्ड टू वॉक पूरी क्लास में और प्रॉपर ऐसे प्रेजेंटेशन देने लग गए। तो मैंने बोला वाओ। नाउ दिस मोमेंट, it changed something in me. I realized that you can't get confident until you start facing your own fears. जिस चीज से डर लगता है वही चीज करो। तो मुझे रियलाइज हुई, इसके बाद धीरे धीरे चीजें बिल्ड होने लग गई। ठीक है, सो धीरे धीरे थिंग्स स्टार्टेड टू बिल्ड, छोटे छोटे स्टेप्स होने लग गए। वाइवाज, एमिटी में क्या होता है, कुछ भी रिपोर्ट हो, कुछ भी हो, तुम्हारे वाइवा होते हैं, प्रेजेंटेशन हो रही रेगुलर, वाइवाज हो रहे रेगुलर, तो तुम कंटिन्यूसली तुम बात करो, देन यू मीट न्यू पीपल, यू टॉक टू देम। और मैंने सोचा कि भाई अब तो नहीं डरना, अब आई हैव स्टार्टेड दिस पाथ टुवर्ड्स कॉन्फिडेंस, सो आई विल नॉट गिव अप, बीच में नहीं छोड़ना। अब तो जो हो जाए मैं डरूंगी ही नहीं। इसके बाद क्या होता है, मुझे याद है, आई हैड माई ऑडिशन फॉर अ डांस क्रू, और वहाँ पे इतनी भीड़ थी, सो इट वाज ओपन एरिया में ऑडिशन। वहाँ पे सारे बच्चे जैसे आईओटी के इतने लोग झुंड बना के खड़े हो जाते हैं। अब मैं वहाँ गई, और मैंने अपने दोस्तों को बोल दिया कि मैं तो नहीं दूंगी ऑडिशन, और मैं भाग गई। और मैं जेनुअनली भाग गई कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ, मैं नहीं आऊंगी। एंड ये लोग मुझे पकड़ पकड़ के खींच खींच के लाए, खींच खींच के कि तुझे देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। एंड देन आई डांस्ड इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल, जजेस, एंड इतने सारे लोग पीछे, एंड आई पोस्टेड दैट ऑन यूट्यूब ऑल्सो, इट गॉट मोर देन 11 मिलियन व्यूज। एंड
वहाँ इतने सारे लोगों के सामने डांस करना बीच में एमिटी के, मतलब मेरा तो कॉन्फिडेंस ऐसे बूस्ट हो गया कि भाई मैंने ये कर लिया तो मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ अब, ये कर लिया मैंने तो क्रेजी हो गया अब तो। फिर बीच में वो आता है लंदन वाला टाइम, ठीक है। अब हम लंदन गए। लंदन में अब क्या है तुम्हें, यू हैव टू टॉक टू पीपल, ठीक है, हैव टू स्पीक इन इंग्लिश कंटिन्यूअसली, यू हैव टू मैनेज योर ओन एक्सपेंसेस, यू हैव टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन, कुक ऑन योर ओन, ट्रैवल ऑन योर ओन, ठीक है, तुम्हारे दोस्त है तुम्हारे साथ बट तुम्हारे पेरेंट्स या कोई बड़ा नहीं है तुम्हारे साथ, तो तुम्हें खुद ही सब कुछ फिगर आउट करना है, ठीक है, कैसे पैसे बचाने हैं, कहाँ पैसे खर्चने हैं, कैसे एक्सपेंसेस मैनेज करने हैं, सब। वहां जाके व्हेन वी यूज टू गो आउट खाने या फिर ऑर्डर देना, बात करना वहाँ के लोगों से, कुछ भी पूछना, इट जेन्युइनली बिल्ट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि मुझे समझ आ गया कि भाई मैं बाहर जाके रह सकती हूँ, मैं मैनेज कर सकती हूँ। से अगर मैं पहले होती स्कूल वाली, मैं किसी से बात ही नहीं करती वहां जाके, बट मुझे वहां जाके रियलाइज हो कि ठीक है यार मैं कर सकती हूँ बात, एंड आई एम गेटिंग मोर कॉन्फिडेंट ईच डे। सो लंदन का एक्सपीरियंस वाज रियली गुड टू बूस्ट दैट कॉन्फिडेंस। तो लंदन तक भी जब मैं गई थी तो आई डेंट स्टार्ट मेकिंग कंटेंट, बट आई थिंक जब मैंने वो डांस का ऑडिशन दिया था वो इट वाज आफ्टर लंदन से आने के बाद का है वो, तब तक आई वाज अ लाइक क्रिएटर, आई स्टार्टेड। तो अब मेरे को इतना डर लगता था कि कैंपस के बीच में आई यूज्ड टू बी सो कॉन्शियस कि मैं डांस की वीडियोस कैसे बनाऊं, कैंपस में मेरे को डांस कर रही हूँ मैं या कुछ कर रही हूँ, लिपसिंग वाली वीडियो है, कुछ भी है, फिट चेक है, मुझे बहुत डर लगता था, मुझे याद है। थैंक गॉड मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले, उन्होंने मुझे इतना पुश करा है ना कि कर कर कर, कोई देखेगा तो क्या हो गया, कुछ नहीं होता, यू हैव टू डू इट, इतना ज्यादा पुश करा है ना मुझे, इतना ज्यादा कि भाई मतलब उन्होंने मेरे को इतना ज्यादा मोटिवेट एंड कॉन्फिडेंट बनाया है ना इस चीज पे कर करके कि भाई अगर मुझे डर भी लग रहा है नहीं, तू करेगी, तू करेगी, तू करेगी, फेस योर ओन फियर, यू हैव टू डू इट। तो ऐसे मैंने धीरे धीरे स्टार्ट करा। देन जब मैं टॉकिंग वीडियोस पहले बनाती थी मैं बिल्कुल नहीं बना पाती थी, मतलब आई वॉज नॉट कंफर्टेबल, मैं बोल ही नहीं पाती थी कैमरा पे देख के, या फिर मैं इधर उधर मतलब आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन कर पाती थी कैमरा से। नाउ धीरे धीरे आई एम गेटिंग बेटर, ऐसा नहीं है मैं अभी भी प्रो हूँ, बट या आई फील मोर कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा नाउ। तो कंटेंट क्रिएशन ने काफी मेरी हेल्प करी। फिर मैंने कॉन्फिडेंस के बारे में पॉडकास्ट सुने, वीडियोस देखी, एंड मैं धीरे धीरे ऑब्जर्व करने लग गई कि कॉन्फिडेंट वुमेन एक्ट कैसे करती है, हाउ दे टॉक, हाउ दे स्पीक, हाउ दे कैरी देमसेल्व्स, हाउ दे वॉक, एंड मैं वो थोड़ी थोड़ी चीजें अपने अंदर भी करने लग गई इम्प्लीमेंट, ठीक है। एंड अब मैं कुछ करने से पहले ये सोचती हूँ कि इज दैट हाउ अ कॉन्फिडेंट वुमेन वुड एक्ट, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प होती है। एंड अभी रिसेंटली मेरे साथ जो हुआ, आई विल टेल यू गाइस। तो मैं जिम में गई एंड मैं जिम में ना आज तक कभी ट्राईपॉड नहीं लेके गई, उस दिन मैं फर्स्ट टाइम ट्राईपॉड लेके गई थी कि भाई आई शूट समथिंग। और मुझे जिम में ना थोड़ा सा कॉन्शियस लगता है कि कैसे होगा क्या होगा, क्योंकि मैंने जिम में बनाया नहीं है। पहले भी मैंने जो जिम की वीडियोस बनाई है, माई सिस्टर यूज टू शूट दैट, तो ठीक था, बट ट्राईपॉड लेके पहली बार जिम गई। तो एक लेडी होती है, शी कम्स टू मी एंड शी सेज कि लाइक आप जिम की वीडियोस बनाते हो तो लाइक हम कैसे बनाते हैं, एंगल कैसे सेट करते हैं, ट्राईपॉड का कैसे होता है, फिल्टर क्या यूज करते हैं। तो आई सेड कि नो, इट्स द फर्स्ट टाइम आई एम ब्रिंगिंग अ ट्राईपॉड हियर, मुझे इतना नहीं पता, बट माय फ्रेंड शी इज अ फिटनेस क्रिएटर सो यू कैन आस्क हर। एंड so I talked to that girl. She told me that she's married. She has a kid. She's working. She's like doing a full 9 to 5 corporate job. And she still decided to start making content just because she wanted to do something for her own. She wanted to follow her passion. And उनको fashion में बहुत interest था, तो फैशन रिलेटेड वीडियोस बनाना सब करना। सो शी केम टू मी, शी सेड दैट आई स्टार्टेड अभी, एंड लाइक हाउ डू डू दैट, ये वो। तो मैंने उनको मोटिवेट करा कि जस्ट बी कंसिस्टेंट, जो आपको पोस्ट करना है करो, एंड वी हैड अ गुड चैट। अब क्या होता है, वी फॉलोड ईच अदर एंड ऑल। 2 3 दिन बाद मैं जिम जाती हूँ एंड आई मेट दैट वुमेन एंड लाइक वी सेड हाउ आर यू एंड ऑल। She comes to me and she says that I saw your feed and all, you are really confident, I mean the way you talk, you are really confident। एंड मैं उस समय ऐसी थी कि भाई ये मतलब सेम वही लड़की, लाइक इट हील्ड समथिंग इन मी बेसिकली। और मेरे अंदर का जो इनर चाइल्ड वाज सो हैप्पी कि वो लड़की, भाई जो लोगों से आई कांटेक्ट नहीं कर पाती थी, ठीक है, जो लोगों से बात करने में डरती थी, जो डाउट्स नहीं पूछती थी टीचर से जाके जस्ट बिकॉज उसको डर लग रहा है, ठीक है, उसको कोई आके बोल रहा है दैट यू आर टू कॉन्फिडेंट द वे यू टॉक एंड ऑल, यू आर अ वेरी कॉन्फिडेंट वुमेन। एंड आई वाज लाइक ब्रो, मतलब आई वांना से कि यहाँ तक पहुँचने के लिए ये नहीं है ओवरनाइट होगा। लिटिल 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 स्टेप्स, अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालो, अपने फियर को फेस करो, ठीक है। क्या होगा ज़्यादा, नहीं तुम गलत कर दोगे कुछ, लोग हंस लेंगे, तुमने कुछ बोल दिया, फंबल कर दिया, लोग हंस देंगे, अगले दिन वो भी भूल जाएंगे, तुम भी भूल जाओगे, बट तुम्हें ये याद रहेगा कि हाँ यू फेस्ड योर ओन फियर।
तो अपने आप को कंफर्टेबल पोजीशंस में डालो, ठीक है? उससे ही तुम कॉन्फिडेंट बन पाओगे। तो मैं वही कह रही हूँ कि ये लिटिल 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 स्टेप्स जो मैंने स्कूल लाइफ से अब तक लिए, दैट शेप्ड मी इनटू द वुमन आई एम टुडे। And honestly, all of this feels a little unreal sometimes. I go to brand events, I meet big creators and influencers, and I can talk to them easily now without overthinking anything. तो मतलब मैंने ये चीज़ें अपने खुद के एक्सपीरियंस से ही सीखी है। ट्रस्ट मी, द मोर यू पुट योरसेल्फ आउट देयर, द मोर कॉन्फिडेंट यू बिकम। Now I can go on solo dates. I can go to dance workshops. I can, talk to strangers. I can do anything that I want. So, if you're someone who struggles with being confident, I want to tell you one thing again, that confidence is not something you are born with, it's something that is built. How? By embarrassing yourself, by failing and still showing up every day, by putting yourself out again and again, again and again, by just keep trying. And one day when you guys look back, you will realize that you became the same person you were once so scared to be, and that's such a beautiful feeling. So I hope you guys liked this video and I could help you in any way. And if you did, don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel, and I'll see you in my next one. Thanks for watching. Bye.